arise from our thoughts. I think to this extent all would agree, greatly agree, right? That our actions arise from thoughts, right? We understand. We can see that. It is obvious. But what we cannot see is where these thoughts arise from. Where do thoughts come from, Navneet? Just from our mind. Where do they come into the mind from? From our day-to-day life situations. Go into that a little deeply. You have understood this much that thought and action is related. That action is born out of thought, which is wonderful. But can you go a little deeply into where does thought come from? Where does thought come from? Whatever we see. Alright, let me ask you. Imagination. Think that you are speaking in Hindi. You can think, right? It's easy. Think that you are speaking in English. Now just think that you are speaking in Russian. Can you think that you are speaking in Russian? So where does thought come from? From your past experiences. What is not in your past cannot be there in your thought either. You cannot think anything except what is already there in your past. In that sense, all your imaginations are nothing but your past. Imagination is a thought, right? All imagination is nothing but thought. So when you say thought is not true, obviously it cannot be true because reality is right now, whereas thought is in the past. So how can it be true? How can it be true? लेकिन सर जो पास्ट में हो चुका है वो भी तो सच ही है। वो अभी का सच नहीं है ना, वो अभी का सच नहीं है, वो स्मृति है सिर्फ एक। सर बट फ्यूचर में जो हम सोचते हैं वो तो हमारे जो करते हैं सर हमारे सोच का एक परिणाम होता है। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ समझ रहे हो क्या है? इसका अर्थ यह है कि तुम अपने लिए जो फ्यूचर बनाते हो सोच सोच के, वो कोई फ्यूचर है ही नहीं, वो पास्ट ही है। तो उसी अतीत को दोहराना चाहते हो सिर्फ। देखो क्या होता है मन में, मन 1000 तरीके के अनुभवों से गुजरा है। उन अनुभवों में कुछ में उसको प्लेजर मिला, सुख, और कुछ में उसको मिली पीड़ा, दुख, पेन। जिन अनुभवों में उसको सुख मिला वो उन्हीं को दोहराना चाहता है, जिनमें दुख मिला वो उनसे दूर जाना चाहता है। इसी इच्छा से वो भविष्य की कल्पना करता है। तो भविष्य और कुछ नहीं है, तुम्हारा मन जिस भविष्य की लगातार कामना करता रहता है वो भविष्य तुम्हारे अतीत का ही पुनर्चक्रण है, रिसाइकलिंग। We all claim that we want a new future, right? We all say that we want a fresh, new, bright future. But the funny thing is, all your imaginations about your future are not new at all. They come from your past. All your imaginations of your future are actually coming out of your past. So even though you claim that you want a new future, you want nothing more than a recycling of the past. क्योंकि नए के बारे में तो मन सोच ही नहीं सकता। मन सोचता ही सिर्फ उसको है जिसको वो अतीत में अनुभव कर चुका है। उसके अतिरिक्त और कुछ सोच पाना उसके बस में ही नहीं है। निश्चित रूप से कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, बस उसी को वो दोहराना चाहता है और कुछ नहीं कर सकता। वर्तमान सर्वथा नया है। Have you been through this moment earlier? क्या ये सवाल आपने पहले भी पूछा है? क्या मैं ठीक इस तरह आपके सामने पहले भी बैठा हूं? क्या ये क्षण आपकी जिंदगी में पहले कभी आ चुका है? The present is always new, whereas thought is always old.
Hence to live in thought is to miss out on the present. अभी भी आप में से जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो सोच नहीं रहे होंगे, और जो सोच में थॉट में खोए हुए हैं वो मुझे सुन नहीं पा रहे होंगे। जो भी कोई मुझे ध्यान से सुन रहा होगा वो गौर करे तो पाएगा कि वो सोच नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा है, बैठा है और सुन रहा है। क्या तुम सोच रहे हो? भी सिर्फ सुन रहे हो ना। और कई लोग हैं जिनसे स्पष्ट है चेहरों से कि वो कुछ सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं। सोचिए, सोच के आप सिर्फ सोच में रह जाएंगे, जो हो रहा है उसके संपर्क में नहीं आ पाएंगे, और सोच तो पुरानी है, बासी है। Getting it? Is this clear now? Why thought is not true? Why do you often find her? Extend the answer a little more. You said all action is born out of thought. अगर प्रेजेंट का एक्शन थॉट से निकल रहा है तो एक गड़बड़ होगी। क्या एक्शन कब है? प्रेजेंट में, और एक्शन निकल किससे रहा है? पास्ट से। गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? ये ऐसी ही बात होगी कि मैं गाड़ी सड़क पे ड्राइव कर रहा हूं और इस आधार पे हॉर्न मार रहा हूं कि कल यहीं पर एक ट्रक आया था, और कल यहां पे मुझे ट्रक नहीं मिला था तो मैं हॉर्न भी नहीं मारूंगा। जो भी लोग आप में से गाड़ी चलाते हैं या बाइक राइड करते हैं वो इस बात को बखूबी समझ जाएंगे, बिल्कुल तुरंत समझ जाएंगे। जब आप बाइक वगैरह चला रहे होते हो तो आप इंडिकेटर या जो लगातार बैलेंसिंग होती है गाड़ी की, वो सोच के करते हो क्या? आपकी गाड़ी चल रही है 60, 80, 100 की स्पीड पे, क्या आप सोच रहे होते हो? आपको जो टर्न लेने हैं, सामने गड्ढा आ रहा है, आप कट लेते हो, इस सब में क्या विचार चल रहा होता है? हाँ, जो नए सीखते हैं उनका चल रहा होता है, और इसी कारण बड़े नर्वस रहते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं। जिन्होंने नई गाड़ी चलानी सीखी होती है वो बहुत सोच के चलाते हैं, और इस कारण बड़े नर्वस रहते हैं। सोचना क्या? अभी स्थिति है, अभी उसका उत्तर दिया, अभी रिस्पॉन्ड किया, गड्ढा है, सोचना क्या? पता है। इसीलिए थॉट से जो एक्शन निकलेगा वो हमेशा थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ रहेगा। न्यू एक्शंस कैसे होंगे? गाड़ी में कैसे चलाते हो? बाइक चलाते हो? बाइक चलाते हो ना, तो कैसे चलाते हो? पहले सर ने स्टार्ट लेता हूं। जब चल रही है उसमें क्या हो रहा होता है? सोच रहे होते हो? चल रही है ना, अभी सर हिलाया, अभी सर बोला, ये सब सोच के कर रहे हो, काम चल रहा है ना, बस ऐसे ही। फ्यूचर के बारे में सोचना है तो कुछ भी बोलना छोड़ दो। तुम खुद देखो कि फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचते हो या बोलते हो तो वो सब कहां से आ रहा होता है? सर तो इसका मतलब फ्यूचर है ही नहीं। देख सकते हो सर, अभी आपने बोला कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो उसको सोच नहीं रहे। तो सर आपने बोला कुछ तो मेरा रिएक्शन आपसे क्वेश्चन पूछा तो मेरी सोचते ही चले एक बार। सोचो नहीं, फिर से फंस गए सवाल पूछ के। जो समझ रहे हैं वो नहीं कंफ्यूज है, जो उसकी तुलना कर रहे होंगे उसके बारे में इधर उधर सोच रहे होंगे, कंफ्यूजन आएगा। कंफ्यूजन के लिए विचार आवश्यक है, तभी कंफ्यूजन आएगा। नहीं तो जो बात कही जा रही है वो इतनी साधारण है कि उसमें कंफ्यूजन का कोई कारण हो नहीं सकता। वो कोई बाहरी बात है नहीं, वो तुम्हारे रोजमर्रा के अनुभव की है, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई कारण हो ही नहीं सकता। अगर मन में कंफ्यूजन होगा तो सिर्फ एक वजह से कि मैंने जो कहा तुमने उसको उठाया और अब तुम उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से तुलना कर रहे होगे। नहीं तो बात तो इतनी साधारण है कि ये दीवार देख लो, मैंने तुम्हारे ही जीवन को उठा करके तुम्हें बता दिया, उसमें सोचना कैसा है? प्रकट सकते हैं। हाँ, जब आप कह रहे थे जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो उस समय सोच नहीं रहे हैं,
लेकिन जब आपने कुछ बोला था तो मैंने उस पर रिएक्शन कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो वो उससे ही तो जनरेट हुआ था। हाँ तो ऐसा नहीं, हर एक्शन सोच से जनरेट नहीं होता। अभी तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि सोच सोच के सर हिला रहे हो, एक्शन हो रहा था बिना सोच के। एक्शन होता है बिना सोचे होता है। अभी मैं भी तुमसे जो बोल रहा हूं, मैं सोच सोच के बोल रहा हूं। एक्शन हो रहा है बिना सोचे हो रहा है। सोचने में और समझने में बड़ा अंतर है। ये जो निकल रहा है ये मेरी समझ से निकल रहा है, इसमें सोच के लिए बहुत कम स्थान है। इसमें सोच के लिए बहुत कम स्थान है। तुमने कहा मैंने सुना, उत्तर आ गया, इसमें सोचना कैसे? हाँ, मुझे सोचना पड़ता, अगर मेरे अंदर स्पष्टता ना होती फिर मैं सोचता कि कैसे उत्तर दूं, दाएं जाऊं बाएं जाऊं, किधर से शुरू करूं किधर से अंत करूं, क्या उदाहरण दूं, मुझे 10 बातें सोचनी पड़ती। सोच इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर स्पष्टता नहीं है। जब स्पष्टता होती है तो सोच की आवश्यकता नहीं होती, एक सहज उत्तर आता है, एक सहज रिस्पॉन्स आता है। मैंने कहा ना, जो नया नया गाड़ी चलाने वाला सीखता है होता है, उसे बहुत सोचना पड़ता है और उसके दिमाग में 10 तरीके के ख्याल आते हैं। पर जिसको एक प्रवीणता हासिल हो जाती है उसे नहीं सोचना पड़ता। सोचना अगर तुम्हें बहुत पड़ रहा है तो ये जान लेना कि ये उलझाव की निशानी है, तुम फंसे हुए हो।